ایک کامیابی ملی تھی مارکہ حق کے حوالے سے، اس کو بھی ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے، اور ہم اپنی قوم کو موبلائز کریں کہ وہ جو آزادی ہوتی ہے اس کا ایک فائدہ یا اس کی ایک فیل آپ کو پتہ چلے کہ ایک آزاد ملک اور خدا نہ خواستہ اگر آپ غلامی میں ہو تو اس میں کیا فرق ہے۔ اس حوالے سے اس سال ہم جو نارمل ایونٹس ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے 14 تاریخ کو سندھ صوبے کے حوالے سے قائد اعظم کی مزار پہ صبح ایک ایونٹ ہوتا ہے فلیگ ہوسٹنگ کا، جس میں گورنر صاحب اور چیف منسٹر اپنی کیبنٹ کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس میں ہم مدعو کرتے ہیں ڈپلومیٹس کو بھی، ہم جو پرومیننٹ سٹیزنز ہوتے ہیں ان کو مدعو کرتے ہیں، اسکول کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ ایونٹ تو ہر سال کی طرح ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہم 1 تاریخ سے شروع کریں گے، اور اس دفعے ہم جشن آزادی کی جو تھیم ہے وہ مارکہ حق کو نظر میں رکھتے ہوئے کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اڑان پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کو بھی ہم نے پروجیکٹ کرنا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پچھلے ایک سوا سال میں ہم ایک صحیح سمت میں جا رہے ہیں اکانومی کے حساب سے، تو ہم لوگوں کو جو ان کی امیدیں ہیں ان کو ری انفورس کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایشیا کے اندر ایک ایمرجنگ اکانومی ہوگی، اور ہم اکانومی کے لحاظ سے اور اس ریجن کے امن و امان کے لحاظ سے بھی ایک نیٹ ریجنل سٹیبلائزر بنے۔ جیسے میں نے کہا، ہم نے خود میٹنگز کی، ایک ہم نے کمیٹی بنائی تھی، سینئر منسٹر انفارمیشن شرجیل میمن صاحب، ناصر شاہ صاحب، سعید غنی صاحب، محمد خان مہر صاحب اور ذوالفقار شاہ صاحب اس کمیٹی کے ممبران تھے، جنہوں نے ڈفرینٹ لوگوں سے انگیج کیا۔ میں نے خود اس کمیٹی کی 2-3 میٹنگز کی ہیں، اور پھر میں نے 2 دن پہلے ایک میٹنگ جو بزنس کمیونٹی تھی، بینکس تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، ان کے ساتھ بھی کی، تاکہ ہم ساتھ مل کے یہ جشن آزادی کے لیے صوبہ سندھ میں بھرپور طریقے سے اس کو منائیں۔ نیشنل فلیگ ہوسٹنگ ہر امپورٹنٹ بلڈنگ اور پرائیویٹ بلڈنگ میں ہم کریں گے۔ ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ بلکہ آج شروع ہو گیا یہ کہ اعلان کریں، کمرشل جو بلڈنگز ہیں اور گاڑیاں، ان سب کو سجانے کی ہم ایک کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں، اور جو بہترین گھر ہوگا، بہترین مال سجایا جائے گا، بہترین دکان ہوگی، بہترین گاڑی ہوگی، بہترین سرکاری عمارت ہوگی، ان کو ریکگنائز کریں گے، ان کو انعامات بھی دیں گے، تاکہ لوگوں میں وہ جذبہ آئے۔ ہر بلڈنگ کی ایلیمینیشن ہوگی، اور وہ ایلیمینیشن میں ہی سجاوٹ آ جاتی ہے۔ ریلیز تو 14 اگست کو ویسے ہی لوگ کرتے ہیں، ہم اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بھی یہ فلیگ ہوسٹنگ ایونٹس وغیرہ کریں گے۔ 14 تاریخ کے تو جو نارمل ایونٹس ہوتے وہ ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم 13 تاریخ کی رات کو، یعنی 13 اور 14 کی درمیانی شب، انشاءاللہ تعالی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ایک پبلک کے لیے اوپن کانسرٹ کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کراچی کے شہری، کراچی سے باہر کے بھی لوگ، نیشنل اسٹیڈیم میں 34-35 ہزار کی گنجائش ہے، تو میرا خیال ہے وہ چھوٹا پڑے گا ایسے ایونٹ کے لیے، اور وہ ایونٹ ہم کر رہے ہیں۔ اور اس ایونٹ کو کنفرم کر دیا انہوں نے، ٹویوٹا موٹرز ہمارے ساتھ اس کو اسپانسر انہوں نے کرنے کے لیے کہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایونٹ جس میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے
माया नाज फनकार हों और पब्लिक को एक अच्छा एंटरटेनमेंट का मिले। उसके साथ साथ फायरवर्क्स का भी प्रोग्राम है वहीं नेशनल स्टेडियम पे उस दिन वो हम करेंगे। उससे पहले 8 तारीख को हैदराबाद में रानी बाग में एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट और इसी तरीके का, और 10 तारीख को म्यूनिसिपल स्टेडियम या अरोर यूनिवर्सिटी सक्खर में हम सक्खर में ऐसे ही एक कल्चरल इवेंट, एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट जश्न आज़ादी मार्का हक के हवाले से करेंगे। तो ये तो 3 मेजर इवेंट्स हो गए हमारे तीनों बड़े शहर में, हम कराची, फिर हैदराबाद और सक्खर में। 13 तारीख को ही कल्चर डिपार्टमेंट सीव्यू से लेके शारा फैसल एक कल्चरल फ्लोट बनाएगी जो कि ट्रैवल करेगा और उसके लिए जुल्फ़िकार शाह साहब उस पर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे जो वीकेंड्स आएंगे इससे पहले, इसलिए कि ज़्यादा हम चाह रहे हैं कि वीकेंड्स पे एक्टिविटीज़ हों। एक कराची से लेके चौकंदी टूम्स तक वुमेंस बाइक रैली होगी 3 अगस्त को सुबह 10 बजे। क्राउन ग्रुप जो मोटरसाइकिल्स वगैरह बनाते हैं वो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत इवेंट्स हैं। स्पोर्ट को 160 इवेंट्स जहाँ तक मुझे बताया स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, पूरे सिंध में इन 14 दिनों में 160 इवेंट होंगे। मैं सिर्फ जो मेजर हैं उनका आपको बताता हूँ। स्पोर्ट्स एंड यूथ सेंटर गुलिस्तान जौहर में कैप्टन सरवर शहीद स्पोर्ट्स गाला होगा 12 और 13 अगस्त को। हम एक मैराथन करेंगे 10 अगस्त को, इतवार का दिन है गालबन, निशान पाकिस्तान से लेके 2 दरिया तक और वापस एक मैराथन कराएगी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। 10 तारीख को ही टाइमिंग हम उसकी देख लेंगे। लेटर इन द डे सीव्यू से लेके फ्रेयर हॉल तक जो हमारी रिवायती डोंकी कार्ट रेस होती है वो कराएंगे। लेकिन ये सारी थीम्स जो इनकी होंगी वो आज़ादी के हवाले से और उसके साथ साथ मार्का हक को सेलिब्रेट करने के लिए। जो मैं सिर्फ मेजर बता रहा हूँ, मैंने कहा वैसे तो 160 है, सारा दिन निकल जाएगा अगर सारी डिटेल्स बताऊँगा। एक मैच मेयर 11 और मिनिस्टर 11 कर रहे हैं, मुझे अभी पता चला है, मुझे नहीं खिला रहे उसमें, ये आपस में खेल रहे हैं। तो वो 8 अगस्त को बुरहानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। तो मैंने कहा ऐसे तो हो नहीं सकता कि मैं ना खेलूं। तो फिर 9 अगस्त क्रिकेट मैच, 9 अगस्त को हमने एक कलंदर 11 वर्सेस भिटाई 11 एक मैच मोइन खान अकेडमी में किया है। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें खेलूं, कलंदर 11 किसी भी टीम से, जिस टीम से हुआ। तो मैं आप सबको भी दावत दूंगा कि इन मैचेस में अगर आपने इसलिए कि ये कोई सरकारी या इसके नहीं, हम चाहेंगे मीडिया से भी लोग हों, स्पोर्ट्स स्टॉलवर्ड्स भी हों और शो बिज़नेस के लोग भी हों, एक कंबाइंड एक नौजवान भी हों और मेरे जैसे बूढ़े भी हों। हार्ड बॉल होगा यार, टेप बॉल से कौन खेलता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ साइकिलिंग रेस है फ्रेयर हॉल से मज़ार कायद तक, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वो कर रहा है। हमने फिशरीज़ डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी को कहा है कि, और पोर्ट से भी डिप्टी वगैरह से बात करके, कि एक बोट रेस हम करेंगे 9 अगस्त को, सैटरडे का दिन होगा। इसके अलावा जो हमारे केएमसी ने कहा है कि जी वो जहांगीर कोठारी परेड पे 13 अगस्त को कॉन्सर्ट, अच्छा ये मैंने इनसे कहा था लेकिन ये 13 अगस्त आप दोनों ये डेट हम चेंज करेंगे। बस 13 को हमारा एक इवेंट है तो 2 इवेंट नहीं करेंगे, किसी और दिन पे उनसे करा लेंगे। ये कॉन्सर्ट और फायरवर्क्स केएमसी जो करना चाहती है जहांगीर, अगेन ओपन टू पब्लिक, जहांगीर कोठारी परेड पे। उसके अलावा कई और ये तो हमारी इनिशियल लिस्ट है सारी। अभी और लोग भी चाह रहे हैं कि अब पार्टिसिपेट करें। हमने बैंक्स को कहा है, उन्होंने आना है, वो इल्यूमिनेशन तो करेंगे और उस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि सूबा सिंध में आज़ादी की जो सेलिब्रेशंस हैं वो
पूरे पाकिस्तान से बेहतर हों। वैसे भी कराची मिनी पाकिस्तान कहलाता है, और हम ये भी चाहेंगे कि कराची के अंदर मैंने बताया मीटिंग की, मैंने बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मैंने बताया मीटिंग की, और उन लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है। और उसके बाद ही जैसे मैंने बताया कि इंडस मोटर्स, टोयोटा मोटर्स जो है वो 13 तारीख वाला इवेंट कराची वाला और हैदराबाद वाला इवेंट आरिफ हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज़ वो स्पॉन्सर कर रही हैं। इसके अलावा ये सारे बिज़नेस कम्युनिटी वाले भी अपने अपने इवेंट्स करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट उनके साथ मिलके करे। हर जगह पे जहाँ उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, मैं आप सब के तवसुत से सिंध के शहरियों से कहूँगा कि हाँ, एक दो चीज़ें मेरे से रह गई हैं, मैंने ये इसके अलावा ये इन्होंने भी लिख के दिए। 11 अगस्त को होता है माइनॉरिटीज़ डे, तो इंशाल्लाह ताला जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से एक बड़ा इवेंट हमारा जो माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट है वो 11 अगस्त को करेगा, जश्न आज़ादी के हवाले से। एक इवेंट हम करेंगे जो हमारे पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके हवाले से एक बड़ा इवेंट किसी एक दिन, वो भी मैंने डिपार्टमेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जो एम्पावरमेंट पीपल विद डिसेबिलिटीज़, उनको हिदायत कर दी है कि एक बड़ा इवेंट, और वो एक पूरे दिन का मेला टाइप होगा जिसमें इंशाल्लाह हमारी कैबिनेट वाले भी, मैं खुद पार्टिसिपेट करूँगा। इस 5 तारीख को कश्मीर, जब भारत ने कश्मीर के ऊपर अपनी वो लॉज ख़त्म करके और नए लॉज बनाए थे, उसके हवाले से हम 5 तारीख को वो सेलिब्रेट करेंगे। 1 अगस्त को चले उसकी कहता हूँ, वो जो हमारी चेंबर करती है माय कराची का इवेंट 1 अगस्त यानी परसों सुबह 11 बजे मैं ख़ुद उधर हूँगा, और मैंने उनके साथ भी यही बात की है कि हम नॉर्मली ये इवेंट फरवरी मार्च में होता है, इस साल अगस्त में हो रहा है, तो हम इसको यौम आज़ादी के हवाले से इस इवेंट को भी मॉडल करेंगे। और जो हमारे ज़हन में चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह ताला करेंगे, एक विंटेज कार रैली यानी पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं उनकी रैली कराने की कोशिश करेंगे। हेवी बाइक्स, इनकी एक रैली कराने की कोशिश करेंगे। फैमिली फेस्टिवल्स, मेले वगैरह लगाएंगे हर जगह पे। पेंटिंग कॉन्टेस्ट आज़ादी के हवाले से लोगों का कहना कि वो अपने फनपारे बनाए, आर्ट्स काउंसिल में मोस्ट प्रॉब्ली उसका इनेकाद करेंगे। सिंगिंग कॉन्टेस्ट, बल्कि हम ये भी कर सकते हैं, मैं कहता हूँ हमारे कल्चर डिपार्टमेंट को कि कोई ऐसा कर लें कि बच्चे बड़े बूढ़े जो भी अपना गाना रिकॉर्ड करके अगर कोई नंबर हो उस पर व्हाट्सएप वगैरह करें, और उसको हम एक जूरी बना लेते हैं कि उसमें वो चेक करें और उसको हम एक इनाम दें, ये भी आप करा लें। मुशायरा इंशाल्लाह ताला कराएंगे। एक रिक्शा रैली की भी है हमें जो प्लान। इसके साथ साथ एक और हमने उस दिन मीटिंग में फ़ैसला किया था और उसको हमने अमली जामा पहनाना है कि हम एक ह्यूमन फ्लैग बनाना चाहते हैं किसी बड़े ग्राउंड में किसी एक दिन पे, उसको भी हम तयन करेंगे कि हम वो ह्यूमन फ्लैग, उसमें मैं आप सबको भी कहूँगा कि आप शरीक हों, ताकि हम एक पाकिस्तान का झंडा जिसमें हमारा सब्ज़ रंग सफ़ेद और हमारा जो चांद तारा होता है उसके हवाले से एक लोगों की मदद से वो एक ह्यूमन फ्लैग बनाए। तो ये सारे प्लान्स थे। मैंने कहा कि ये लॉन्च करने के लिए 1 अगस्त से पहले आप सब दोस्तों से मिलूं और आपसे यही रिक्वेस्ट करूं कि मीडिया भी ज़्यादा से ज़्यादा कौम में जज्बा आज़ादी, कौम के अंदर हम आहंगी और हमारी कौम को मुत्तहद करने के लिए जो एक मौका आता है हमारे पास यौम आज़ादी के हवाले से, उसको उजागर करें और हम सब मिल के इंशाअल्लाह ताला ये जो पहले 14 दिन हैं अगस्त के उनको शायना शान तौर से मैंने बताया आपको। बोट रेस मैंने बताई, माई किलो की रैली भी है, ये बलोचों की भी है। ये जो सारा प्लान है लाजमी, इसमें कराची शहर आपको पता है 24 घंटे जाता है, इसमें ट्रैफिक प्लान क्या होगा क्योंकि जहाँ रैलियाँ निकलेंगी। दूसरी बात ये कि दियाली की क्या पूरी हमारी सिंध की 2-3 और भी सकाफत है, जैसे कि गदा गाड़ी रेस होती है, वो है। पता नहीं किसी ने
સર બલાખડો ડોંકી જો ને ન સમજ્યું સહી था सर बलाखड़ो है मल सही बिल्कुल। देखिए मैंने कहा ना 160 प्रोग्राम हैं, मैंने कुछ बताए इधर 160 प्रोग्राम है जो कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कर रहा है। आपने सिक्योरिटी और ट्रैफिक की बात की, मेरी इस हवाले से मीटिंग आज सुबह भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग की है सिक्योरिटी के हवाले से, जिसमें आईजी भी थे, ताकि सिक्योरिटी ट्रैफिक प्लान वो सारा ऑब्वियसली इतने बड़े पैमाने पे अगर हम इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें होंगी। और मैं लोगों से भी कहूँगा कि कोऑपरेट करें, कि इसलिए थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, लेकिन दिस इज़ फॉर अ गुड कॉज। नहीं तो हम बहुत उल्टी सीधी चीज़ों के लिए रोड लोग ब्लॉक कर देते हैं। ये तो मुल्क की आज़ादी की सेलिब्रेशंस की बात है। वकास ये तो जो हुकूमती महकमों की जानिब से तो प्रोग्राम हो रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी ऐसे हुकूमत तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर कोई ग्रैंड इवेंट करेगी कि ताकि पूरे सिंध से पैगाम जाए, सिंध हमारा पाकिस्तान को बनाने वालों मैं ये मौका इस्तेमाल करते हुए सारी सियासी जमातों से गुजारिश करूँगा कि हुकूमत सिंध के साथ, और ये जो हुकूमत सिंध है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो पाकिस्तान पीछे तो जो है इसको सारा गाइड करने वाले और चलाने वाले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। तो मैं बाकी सियासी जमातों से हम ऑफिशियली भी यानी फॉर्मली भी उनको अप्रोच करेंगे, लेकिन ये मौका है तो मैं मीडिया के तवज्जुह से भी सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सेलिब्रेशंस में अपनी और चीज़ें बुला के, वो तनकीद होती रहती है, हम भी करते हैं वो भी करते हैं, उनको सबको इजाज़त है तनकीद करने की, बेजा तनकीद करने की भी इजाज़त है, इसलिए कि यू नो इस हमारे आइन इजाज़त देता है कि आप जो चाहे बोले, चाहे सही हो या गलत हो। कामरान अली ये बताइए कि स्कूल खुल रहे हैं तो क्या स्कूलों या तालीमी इदारों के मुतालिक क्या कोई फैसला किया गया है, या वो महकमा तालीम ही वहाँ नहीं, स्कूल नॉर्मली खुले ही रहेंगे जैसे उनका स्केड्यूल है, उसको हम नहीं कोई तालीम के हवाले से हर दफ़े, मैं तो एज ए स्टूडेंट प्राइमरी स्टूडेंट याद है कि हम यौम आज़ादी के मौके पे अपने स्कूल के अंदर इवेंट्स करते थे, अक्सर बाहर जाते थे, तो वो हम चाहेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हमारे साथ, सरदार शाह साहब भी मीटिंग्स में रहें और वो भी वो प्लान करें कि स्कूल्स के बच्चों को भी हम करें सिर्फ भर के। साहब ये बताइए कि नॉर्मली देखा गया कि 14 अगस्त को लोग घर जाते हैं, गोरख हिल स्टेशन जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, इस हवाले से क्या वहाँ पर भी कोई हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है लोगों को? इस वक्त देखें प्लान नहीं है 14, वैसे तो वो गोरख जाना है, कल्चर मिनिस्टर बैठे हैं इधर, या थर जाना है तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि थर जाना है तो हमने रोड इतने अच्छे बना दिए कि लोग आसानी से जा सकते हैं। गोरख में भी काफ़ी हद तक बेहतरी है, जो 2-4 लग पास वगैरह पे जो प्रॉब्लम होते हैं तो इश्यूज, तो लोग खुद जाते हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। हम चाहेंगे ये कि ख़ास तौर पे जो हमारे मेगा इवेंट्स हैं 3, कराची वाला 13 अगस्त को, हैदराबाद वाला 8 को गालिबन, और सखर वाला 10 अगस्त को, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, लोग आएँ। ये जैसे मैंने कहा ये फ्री कॉन्सर्ट्स हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि उसमें हम मुल्क के मायनाज फनकारों को बुलाएं ताकि वो लोगों को एंटरटेन करें और एक आज़ादी का जज्बा उभारे लोगों के अंदर, लेकिन फैसिलिटेट करेंगे इन चीज़ों को। हाँ, एक चीज़ और भूल गया मैं, इसी दौरान 8 और 9 अगस्त 9, 10, 11 अगस्त को भिटशा का मेला भी है, और भिटशा के मेले को भी हम सेलिब्रेट करते हैं। हम उसको भी इंशाल्लाह ताला, सिंध सूफियों की धरती है, और ये इन सेलिब्रेशंस में हम उस भिटशा के मेले को भी वो रंग देंगे कि आज़ादी का। पाकिस्तान में सिर्फ के किरदार का जो रहा है उस हवाले से ये नहीं है कि सिर्फ एक बार, बल्कि सिंध असेंबली में पाकिस्तान के लिए 2 बार करारदादें पेश की हुई है और पास की है। आखिरी करारदाद मार्च 1947 मुझे पता है, मैंने असेंबली में पूरी तकरीरें बताई थी आपको बात। हाँ, क्या उस किरदार के को उजागर करने के लिए भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें जो है वो? एब्सोल्युटली, अगर आपने देखा होगा, इसलिए कि इस दफ़े असेंबली के अंदर बजट के दौरान कुछ तकारीर हुई थी जिसमें मैं, मेरा ख्याल है अननोइंगली, इसलिए कि शायद उनको था नहीं वो इल्म, तो इस वजह से मैंने बड़ी डिटेल में जो
پاکستان بنانے والا یہ صوبہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اور جس کو نہیں پتہ وہ اپنی درست کرے ہسٹری کی، اس لیے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، پہلی قرارداد اسمبلی نے پاس کی تھی، پھر پاکستان کو جوائن کرنے کے لیے پہلی اسمبلی سندھ تھی جو اس نے مارچ 1947 میں قرارداد 48 میں میرے خیال یہ مجھے 47 ہاں اس میں دی تھی، تو 2 بار قرارداد پاس کی. اور یہ صرف نہیں ہے، جو شروع میں سندھ کو ممبئی سے یا بامبے تھا اس زمانے میں، بامبے سے الگ کرنے کی جو تھی اسٹرگل، اسی کے وجود وہ فاؤنڈیشن تھی پاکستان کو بنانے کے لیے. تو ضرور ہم یہ ساری چیزیں اجاگر ہوں گی. سنجے سادھوانی صاحب، جو لوگ 1947 میں سندھ آئے تھے اور پاکستان میں سندھ میں شریک ہوئے جہاں پہ تھا، تو اس حوالے سے بتائیں گے کہ سندھ کی مہمان نوازی کیا تھی، کس طرح 47 میں آئے ہوئے لوگوں کی ہم نے ویلکم کیا تھا، اس کا وجہ رہتا ہے. یہ دیکھو نا، بالکل یہ ہسٹری ہے ہماری، اور ضرور ہمارے جو پروگرامز ہوں گے اس میں میں یہی کہوں گا کلچر ڈپارٹمنٹ سے بھی، اور باقی جو ہمارے پروگرامز ہوں گے تو یہ ساری چیزیں اجاگر کریں گے ایک بار پھر، اس لیے کہ تاریخ کو جو بھلا دیتے ہیں نا وہ بڑے نقصان میں جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے تاریخ کو، اور ہمیں پتہ ہوگا، شاید ہمارے بچوں کو پتہ نہیں، تو ہم نے وہ یہ تاریخ میں جو اسٹرگل تھی، ساروں کی جو قربانیاں تھیں، ان لوگوں کے بھی جو اپنے گھر بار چھوڑ کے ادھر آئے، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ان کو ویلکم کیا، ان دونوں کو کا جو تھا اس سب کو اجاگر کریں گے. قاضی صاحب ایک منٹ، قاضی صاحب اچھا شاہ صاحب، کیونکہ آنسٹ آپ اس کو نگیٹو نہیں لیجیے گا کہ ہم اس سال ہی کیوں اتنا زیادہ مطلب بار بار کیا یہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ ہم وطن سے اپنے ماترک سے بہت محبت کرتے ہیں؟ سر نہیں میں نیگیٹو نہیں لے رہا، پورا کریں نہیں ہاں کر لیں. ہمیں اے پی میں پنجاب میں اس طرح کی میسو ایکٹیویٹی اور پریس کانفرنس نظر نہیں آئی جو ہمیں سندھ میں، تو ہم مطلب ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہمیں بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم نہیں ہم دل سے کر رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان وہ بھی اسی طریقے سے اس کو، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، ہم لیڈ لیتے ہیں، ہمیشہ ہم لیڈ لے رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں. یہ دیکھیں یہ سال کیوں ہم زیادہ پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں. اس سال مئی کے مہینے میں جو ہمارا انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ تھا، ہم نے اپنے لوگوں کو، اس لیے وہ بڑا افیکٹو شارٹ 3-4 دن میں ختم ہو گیا، لیکن وہ اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے. تو یہ سیلیبریشنز کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس آزادی کی امپورٹنس کو اجاگر کریں، اور یہ چاروں صوبے منائیں گے. سندھ آپ نے کہا ہے، ہم نے پریس کانفرنس وغیرہ کی، ہم شاید زیادہ تھوڑے انتھوزیاسٹک ہمیشہ ہوتے ہیں. کوئی جیسے ابھی بات کی قاری صاحب نے کہ 2 بار ریزولوشن سندھ اسمبلی نہیں پاس کی تھی، تو یہ کوئی پروو کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ پاکستان کی محبت ہے جو ہمیں پروو کرنے کی ضرورت نہیں، واضح ہے. ایک منٹ. شاہ صاحب 5 اگست کو ایک سیاسی تنظیم جو ہے وہ احتجاج کرنے کا بھی اعلان کر رہی ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اسلام آباد کے اندر ایک احتجاج چل رہا ہے، اس کے علاوہ وزیرستان کے اندر بھی ایک ایجیٹیشن چل رہی ہے. اس تمام تر سینیریو کے اندر کراچی خاص طور پر سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ بہت خاص کرنے پڑیں گے، کیونکہ شر پسند عناصر ایسے موقعوں پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ذرا اس بارے میں بتا دیجیے، اور جو اس وقت سچویشن ہے ملک کی دیگر ایز اے وزیر اعلیٰ سندھ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں یہی درخواست کروں گا ہر ایک سے کہ یہ جب ایک وفاقی حکومت نے، صوبوں نے مل کے ایک اچھی روایت ڈالی کہ 14 دن ہم سیلیبریٹ کریں، تو ہر سیاسی جماعت باقی چیزیں چھوڑ کے اس میں پارٹیسپیٹ کرے فلی. کوئی اگر نہیں کرے گا اور اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی لوگ ان کو پہچان جائیں گے. سیکیورٹی صورتحال ہماری ملک کی سنگین تو ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے 2 صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان، آئے دن وہاں پہ ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن ان ٹیررسٹ کو
जहन्नुम रसीद करना, ये भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस और हम सब शहरियों का, पाकिस्तान के शहरियों का की जिम्मेदारी है। कराची एक ज़माने में, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी तरीके से दहशतगर्दी का निशाना बना हुआ था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी पुलिस, रेंजर्स, फ़ौज की कुर्बानियों से, शहादतों से, और उसके साथ साथ हुकूमत सिंध के रिज़ॉल्व से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की रिज़ॉल्व से, जो ख़ुद हमारी पार्टी, हमारी लीडरशिप टेररिज्म का बहुत बड़ा शिकार रही है। हमने कभी हार नहीं मानी। आपको वो भी याद होगा ना, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था, मायूसी छाई हुई थी। उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने नारा लगाया था कि पाकिस्तान कब पे। तो इन टेररिस्ट के डर से या इन टेररिस्ट की वजह से हम कोई अपनी एक्टिविटीज़ कर्टेल नहीं करेंगे। हाँ, सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे और हम अच्छी तरह उसका एहसास है और इंशाअल्लाह ताला वो लिए जाएंगे। मैं फिर आप लोगों के तवज्जुह से यही दरख्वास्त करूँगा, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी से, हर मुहब्बे वतन सियासी जमात से, कि जब एक पूरी या तो कह दें कि जी हमने यौम आज़ादी इस साल नहीं मनाना है और देख लें उसकी रिएक्शन क्या आती है, लेकिन जब एक फ़ैसला हुआ है कि जी हमने इस साल शायना शान तौर से मनाना है और पूरे 14 दिन मनाना है, तो उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करें। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये के बाद लास्ट दो मैं कह रहा हूँ, देखें, हम इसके लिए जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं, मैंने कहा घर सजाना, दफ्तर सजाना, मॉल सजाना, एक कैटेगरीज बना लेंगे। और मैं कहूँगा ख़ासतौर पर ये कल्चर वालों का ज़्यादा काम है कि वो एक ज्यूरी बना लें हर एक के लिए। अच्छा, सजाने के लिए ऑब्वियसली अगर मैं ज्यूरी में हूँ तो हर घर जाके देखूँ, और सबसे हम उसके भी ये कहेंगे, मीडिया से कहेंगे कि आप उजागर करें, लोगों के इंटरव्यूज़ हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा घर सजाया है, ताकि लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी ये था ना कि मीडिया हमारे साथ रहे इस पूरे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में। तो हम ज्यूरी बनाएंगे, हम चाहेंगे कि उसकी तशहीर आपके थ्रू हो, उसकी तशहीर सोशल मीडिया के थ्रू लोग खुद करें। और वो जो हमारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन, जैसे मैंने कहा, कोशिश, मेरी सजेशन है और कल्चर डिपार्टमेंट ज़रूर करेगा कि एक व्हाट्सएप का नंबर दे दिया कि जी इस नंबर पे आप अपना गाना भेजें, और वो फिर एक जो मायनाज हमारे फ़नकार हैं, जो भी क्रिटिक्स हैं, उनके हवाले किया जाए कि वो उसमें 1 2 3 गाना जो जिसने बेहतर गाया, और ये सब आज़ादी के हवाले से होगा, वो भेजें उनको और करें। तो ये तरीक़ेकार इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें आपकी बहुत मदद की ज़रूरत होगी। और मैं चाहूँगा कि मेजर चैनल्स अक्सर करते रहते हैं इस तरीके की चीज़ें, वो भी पार्टिसिपेट करें। दो चैनल एक कुछ दो यार वो मुश्किल हो जाएगा, आप सब इतनी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, इतने इनाम कहाँ से लाओ। एक मिनट जी दो सुन लेंगे ना। अरे यार, आप लोग, एक तो सवाल हो चुका है ये, मैं माफ़ करना कहा था गाइस साहब ने कि इसको नेगेटिव ना लें, हमें वजाहत पेश करने की। क्या आप समझ रहे हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की थी सिंध असेंबली में, कोई वजाहत दे रहे थे? नहीं, मतलब उनको भी डाउट करता, मुझे तो करो यार अब आजकल ये मीडिया, तो ये ऐसी कोई नहीं चीज़ है ये। और जैसे मैं कहा ना, हम लीड करते रहे हमेशा, और हम फिर लीड कर रहे हैं और पीछे सारे फॉलो करेंगे इंशाल्लाह।
लास्ट क्वेश्चन लास्ट आप ये बता दें, आप जो कह रहे हैं लोग इमारतें घर दुकानें सजाएं, तो इस पे हुकूमत क्या उनकी मदद करेगी या वो अपनी मदद आप तैयार होने से तारीख में जाएंगे? दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप हर 14 अगस्त को बताए काबीना के साथ हाजिरी देते हैं, इस हाजिरी में जो है वो काबीना के कुछ चेहरे चेंज होंगे या यही होगा? देखिए वो तो मेरी मर्जी है, जिस वक्त चाहे चेंज करूं, आपको पूछ के या बता के नहीं करूंगा, जब करूंगा पता चल जाएगा। दूसरा सवाल तो नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है कि उस मदद की जाएगी। लोग अपनी और ये थोड़ी होगा कि जिसने महंगा सजाया है तो उसको इनाम मिलेगा। मैं तो ये समझ रहा हूँ ये इनाम पता कौन जीतेगा? अभी मेरा ये ख्याल है, हमारी जो हमने 21 लाख घर बनाए ना, बना उसमें 7-8 लाख के करीब भर चुके हैं, वो इनाम जीतेंगे। इसलिए उनमें अभी से मैं देख रहा हूँ कि वो आज़ादी के हवाले, तो इसमें कोई महंगे की बात नहीं है। आप बहुत ही सस्ते तरीके से एक बेहतर सजावट कर सकते हैं। और मेन तो वही होगा, अगर जिसने पैसे ज़्यादा खर्च किए, मैं तो जो जोरी होगी उसको खैर मर्जी उनकी होगी, उनको भी ये कहूँगा कि उसकी तरफ ना जाए। पैसे खर्च सब कर सकते दिल से, और एक अच्छी थीम दे के जो सजावट कर सकते हैं उसकी तरफ। लास्ट क्वेश्चन खुर्शीद। ये इनाम कितना रखा गया है, कोई ऐलान किया आपने? जी इनाम कितनी रकम होगी अभी? क्योंकि ऐसा है कि लोग 5 लाख खर्च करें, आप बाद में 20,000 पैसे देंगे। मैंने फिर वही कहा कि ये पैसों के लिए नहीं है इनाम, ये रिकग्निशन के लिए। सबसे पहली बात ये जज्बे के लिए, ये वो उजागर करना चाहते हैं, और खर्च करने पे नहीं होगा। इनाम इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।